So yesterday I was doing this problem. Invert the matrix by row direction method. .25. So this was the matrix. Invert the matrix. Invert the matrix. Matrix was A is equal to 1, 1, 0, 1, minus 1, 1, 1, minus 1, 2. So I want to invert it by row direction method. So what I will do, I will write a problem को हम कर देते थे. I will write an identity matrix. Take a matrix. It is 3 by 3 matrix. So take 1, 1, 0, 1 minus 1, 1, 1 minus 1, 2, and here you take the identity matrix. 3 by 3 की तो 3 by 3 की ले लेंगे. Given matrix is order क्यों? अगर ये 3 by 4 by 4 की होती तो 4 by 4 की ले लेते. ठीक है. तो हमें क्या करना होता था कि I will change it into identity. So I will choose the operation such that this matrix which is given to you, it should reduce to the identity matrix. तो जो resultant matrix आपकी right side वाली होगी, it will become a inverse. ये प्रोसीजर होता है. So I will change it into identity matrix. तो identity के लिए क्या होना चाहिए? This column entry only one is required. This should be 0, है ना? तो हमने क्या ऑपरेशन लगाया था यहाँ पर? R2 minus R1, R3 minus R1. So it will become R2 minus R1. So R1 as it is 1, 1, 0, 1, 0, 0. R2 minus R1, so it was 1 minus 1, 0, minus 1, minus 1, minus 2, 1 minus 0, 1, 0 minus 1, minus 1, 1 minus 0, 1, 0 minus 0, 1, 0, and R3 minus R1. So 1 minus 1, 0, minus 1, minus 2, 2 minus 0, 0 minus 1, and 0 minus 0, 0, 1 minus 0. Okay. Now I need it. So what I will do? What I will do? I will take a strip. -2. हाँ इसे डिवाइड कर देते हैं. So I can take R2 में I can take R2 by minus 2, and R3 I can take R3 by minus 2. So it will become 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, minus 2 divide किया, it will become 1. It will become 1 by 2 with minus sign, and it is 1 by 2 positive sign. It is minus 1 by 2, 0 by something is 0, and then it will become 0, 1, minus 1, 1 by 2, 0, and this is minus 1 by 2. ठीक है. चलो इधर ही कर लेते हैं, अभी इधर स्पेस है आपके पास. Now what? So now you got this one. So I can take what? This 0. So I can take now R2 minus R1 and R2 0 रखना है हमें. So R1 minus R2 and R3 minus. Yes, exactly. So I can take now R1 minus R2 and R3 minus R2. So this matrix is equivalent to. तो
तो R1 minus R2, तो 1 minus 0 1, 1 minus 1 0, 0 minus minus half is half, 1 minus half is half, 0 minus half is half, and 0 minus 0 0. ठीक है भाई, keep checking my calculation. R2, no change in R2, so 0 1 minus half, half minus half 0, and R3 minus R2, so 0 1 minus 1 0, minus 1 plus half, so it will become minus half, and half minus half is 0, plus half minus half. देखना भाई सही है स्टेप्स। चलो now what? अब इस कॉलम में हाँ R2 में से R3 घटा देंगे, माइनस कर देंगे। R2 में से R3 और R1 भी तो है पूरा। यस सर, R1 भी करना है तो R1 माइनस R3, तो या तो अच्छा चलो फिर इसे R1 प्लस R3। बाद में 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 1 बन जाएगा ना। पहले सब्ट्रैक्ट कर लो चलो। तो यू विल टेक R1 प्लस R3 and R3 R2 minus R3, R3, so it will become, so R1 plus R3, so 1 plus 0 is 1, R1 plus R3, 0 plus 0 is 0, and half minus half is 0, half plus 0 is half, half plus half is 1, 0 minus half is minus half, and R2 minus R3, so 0 minus 0, 1 minus 0, minus half is 0, half minus 0 is half, minus half and minus half, minus 1 and माइनस now it will become, and this is R3 as it is, 0 0 minus half is 0 इधर है, and 0 half and minus half, बस हो गया। क्या करना है, बस इसे 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय R3 में, -2 से हाँ R3 into -2, R3 into -2, बस ये काम आपका होगा। सो जो न्यू मैट्रिक्स आई इक्विवेलेंट टू दिस 1 0 0 हाफ 1 माइनस हाफ 0 1 0। यार ये फोन जो है हमेशा क्लास yes, so 0 0 1 0, how much it is, -1 and 1 1 ठीक। so here now you can see it becomes identity matrix, so hence जो राइट हैंड साइड आइडेंटिटी चेंज हुई दैट विच योर ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इज हाफ 1 माइनस हाफ, हाफ माइनस 1 हाफ 0 माइनस 1 1, इट इज योर ए इनवर्स। ओके, तो इसको हमने आइडेंटिटी चेंज किया, जो राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी चेंज हो गया दैट विल बिकम योर ए इनवर्स। सो इट इज द मेथड which you can apply for
फाइंडिंग इनवर्स, है ना, इट इज वन ऑफ द मेथड्स। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस पे 5.9 प्रॉब्लम्स है, अपना ट्राई करेंगे इस पे। प्रॉब्लम सेट 5.9। प्रॉब्लम सेट 5.9 में फर्स्ट प्रॉब्लम है पेज 202। ठीक, डिफरेंट मैट्रिक्स से उनके आपको इनवर्स निकालने हैं, तो आप अपने आप ट्राई कर लीजिएगा, उस सेम टाइप की प्रॉब्लम्स है सारी। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस unit and of this course is eigenvalues and eigenvectors. That is the last topic. Six 6.8. After this, the direct we have 6.8. Eigenvalues and eigenvectors. Okay. So eigenvalues and eigenvectors. What are eigenvalues? Suppose I am interested in, you have some matrix A, suppose, है ना, I am to considering A is a matrix of order n cross n. So I am interested in for what values of lambda, for what values of lambda, where lambda may be complex number, है ना, lambda may be any number, complex भी हो सकता है, real, जब complex है तो real भी हो सकता है, every real is complex, है ना, for what values of lambda we have ax is equal to lambda x. अब x is unknown, it will be unknowns. It is system equation. If you have system equation, x means, यहाँ पे x means what? It may be x1. बेसिकली जब a n सर क्रॉस जो n है, अननोन होंगे। हाँ, जैसे a n क्रॉस n है तो यहाँ पर n अननोन्स होंगे, जाहिर है, क्योंकि अभी आपकी बात हो रही है सब स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो कितने अननोन्स होंगे? n इक्वेशंस n अननोन्स, x will be n. So basically if you have a matrix like this, है ना, suppose for example, suppose n is equal to 3 ले लूँ अगर मैं, so I want to find for 3 by 3 matrix. Suppose A is given to you some alpha 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, है ना. Suppose it is your A given to you 3 by 3. So I want to, the point is x should be non-zero. X is non-zero, क्योंकि जीरो के लिए तो ट्रिवियल होल्ड होगा. देखो जीरो के लिए इट हैज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन, जीरो इज इक्वल टू जीरो, है ना. सो आई वांट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मींस आई एम सॉल्विंग इट फॉर नॉन ट्रिवियल, जीरो नहीं है उसके अलावा. सो इफ यू हैव a इज इक्वल टू दिस, तो x विल बी व्हाट, कितने अननोन्स होंगे? 3 अननोन्स है इसका मतलब. सो आई वांट टू सॉल्व देन, सो आई वांट ax is equal to lambda x for some lambda. अब इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं तो आई कैन राइट ax minus lambda x is equal to 0, or you can write a minus lambda
अब देखो जब ये लैम्डा एक्स है, लैम्डा एक्स एक्स व्हाट इज दिस एक्स, एक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स, तो अगर आप कॉलम कॉमन लेंगे तो आई विल राइट ए माइनस लैम्डा ई एक्स, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी आएगा साथ में, मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट होगा, नॉट अ नंबर। तो अगर आपने एक्स लिया तो बेसिकली क्या है, ये लैम्डा आई, दैट मीन्स व्हाट इज दिस, यू हैव, अब आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो लैम्डा आई कितना हो जाएगा, कॉलम जो आपकी डायगोनल थी दैट विल बिकम लैम्डा, तो माइनस में क्या हो जाएगा ये सर माइनस लैम्डा हो फिर जाएगा। डायगोनल में, तो सर ये अल्फा 1 2 रह जाएगा, और यहाँ पर अल्फा 2 1 माइनस लैम्डा। हाँ, एंड सिमिलरली डायगोनल में सिर्फ अल्फा लैम्डा 3 3 सब्ट्रैक्ट हो माइनस जाएगा, लैम्डा। है ना, डायगोनल में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बस, क्योंकि यस लैम्डा है, सर। और एक्स विल बी व्हाट, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। ये एक सिस्टम आपके पास बन के आएगा। लैम्डा इज a fixed scalar which I want to find. Now this has a non-trivial solution, है ना, this system, ये जो system है, this has a non-trivial solution if and only if this is 0। ये एक रिजल्ट है कि कोई सिस्टम आपका it has a non-trivial solution if and only if the determinant of this is equal to 0, because I am interested in non-trivial solution। तो ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा इसका, जब ये डिटरमिनेंट 0 हो। ये बेसिकली आपकी पीछे एक थ्योरम है, थ्योरम 6.7.1 बुक में आपके, इसी में एक थ्योरम दे रखी है पेज 232 पेज पे। इसे आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर कोई सिस्टम आपके पास ना, ये थ्योरम क्या है, थ्योरम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थ्योरम ये कहती है 6.7.1 जिसको मैंने इस्तेमाल किया है पेज 232 पे। दिस थ्योरम स्टेट्स if A is some matrix, square matrix alpha ij n cross n, then Ax is equal to 0 has a non-trivial solution if and only if determinant of A is equal to 0 ना। ये थ्योरम है एक, अगर कोई सिस्टम क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या, जैसे मैं मान लो 2/2 ले लूं, n is 2, suppose you have a system 2x plus 3, ये लोग परेशान ही करते हैं। है ना, सपोज आई एम टेकिंग 2/2 ax इज इक्वल टू 0, देखो तो यहाँ पर अगर मैं इट हैज अ नॉन, देखो 0 सॉल्यूशन तो इसका हमेशा आ ही जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पर इसकी रैंक निकालू मैट्रिक्स ए की, व्हाट इज मैट्रिक्स ए, 2 3 4 5, व्हाट इज द रैंक, तो रैंक के लिए अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकाले, अगर डिटरमिनेंट इसका नॉन जीरो है तो रैंक 2 हो जाएगी, है ना, या इसे रो रिड्यूस इक्वल फॉर्म में चेंज कर लो। तो अगर आप डिटरमिनेंट निकालेंगे, व्हाट इज द डिटरमिनेंट,
10 minus 12 minus 2 not 0. So what is the rank of A is सर 2, 2 हो गई। है ना? हाँ, जो नॉन जीरो आ जाएगा वही रैंक, तो इसकी रैंक ऑफ ए इज 2. ये यू कैन सी डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो. अब इसका अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो सॉल्यूशन क्या आएगा, इसको जरा सॉल्व करके बताओ. इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे बताओ क्या आएगा, x0 y0. भाई आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2 से, मान लो सब्ट्रैक्ट कर दो, y का टर्म 0 आ जाएगा, x का 0 है ना. जब डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है इट विल ऑलवेज हैव अ ट्रिवियल सॉल्यूशन. लेकिन अगर ऐसी इक्वेशन हो जिसमें डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा हो, इसमें डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, डिटरमिनेंट जीरो आ रहा हो. नाउ सपोज आई एम टेकिंग 2x plus 3y is equal to 0 and I am taking 4x plus 6y is equal to 0. यहाँ पर मैट्रिक्स क्या आएगी आपकी, डिटरमिनेंट क्या है बताओ इसका, 0 है. सर 0 है। इसका आपके पास हमेशा क्या आएगा, देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो बेसिकली है क्या, ये सेकंड इक्वेशन इज द मल्टीपल ऑफ फर्स्ट वन, है कि नहीं है? फर्स्ट वन। तो इसको इट इज नथिंग बस इट इज इक्विवेलेंट टू 2x plus 3y is equal to 0. ये एक ही इक्वेशन है एक्चुअली, और जब ये एक ही इक्वेशन है तो इसका मतलब क्या हो गया, y is equal to how much, माइनस सर ये 2x, 2/3x, ये सर है ना? -2/3x। अब ये क्या है, इट इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. x में 1 रखूंगा तो यहाँ y -2/3, है ना. जीरो मतलब जीरो के अलावा भी सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. ये मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया आपको. तो ये रिजल्ट कहता है कि अगर डिटरमिनेंट ए 0 है तो इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा. ये मैंने एग्जांपल बताया आपको ना, डिटरमिनेंट 0 आया जैसे, तो ये इट इज जनरल, इट इज ट्रू इन जनरल. ये तो मैंने 2/2 एग्जांपल लिया था, बट इट इज ट्रू इन जनरल. तो जब भी डिटरमिनेंट इज नॉट 0 आएगा उसका हमेशा इसका हमेशा क्या आएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. लेकिन ये होमोजेनियस सिस्टम की बात हो रही है, ध्यान रखना. ax is equal to 0 और इफ डिटरमिनेंट इज 0 देन इट हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. तो यहाँ पर डिटरमिनेंट, अब यहाँ पर आपका सिस्टम किस टाइप का बन के देखो, ये ax is equal to 0 and I want नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. नॉन ट्रिवियल मतलब 0 के अलावा. तो वो कब होगा, बाय दिस रिजल्ट, अगर ये डिटरमिनेंट क्या हो, 0 हो. ओके. अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखो तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये लैम्डा में क्यूबिक, क्योंकि अल्फा क्या है, अल्फा तो आपके पास कुछ स्केलर्स गिवन है, लैम्डा अननोन है मेरे पास. तो यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करेंगे क्या बनेगी, एक पॉलिनॉमियल बनेगी लैम्डा में. देखो लैम्डा की डिग्री क्या होगी, यस सर, लैम्डा क्यूबिक इक्वेशन क्यूबिक फॉर्म इक्वेशन होगी बनेगी, डन। क्योंकि लैम्डा 3 बार आ रहा है, आप देख यस सकते हो. सर। सो इट विल गिव यू अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन लैम्डा, है ना. इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं इसे 1 कर दूं, ये एक्सप्लेन कर दी मैंने थ्योरम. सो expanding equation 1, we will get a cubic means third degree equation in lambda, है ना, which has कितने रूट्स आएंगे, एग्जैक्टली 3 रूट्स. 3 रूट्स आएंगे इसके. एग्जैक्टली क्यों कह रहा हूं मैं, सिंस लैम्डा में बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इसलिए अगर रियल होता तो आपके पास रूट्स 3 नहीं आते, मतलब आ भी सकते थे नहीं भी आ सकते थे. लेकिन अगर लैम्डा कॉम्प्लेक्स है तब तो हमेशा 3 रूट्स मिल ही जाएंगे आपको, गारंटी है. क्यों, मिल सकते यस हैं, सर, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल, रियल भी हो सकते हैं हाँ और मान लो आपके कॉम्प्लेक्स भी पास हो सकते इस टाइप की एक पॉलिनॉमियल सॉल्व हो के आ जाए, तो अगर लैम्डा रियल है तब तो आपके पास सिर्फ एक ही रूट है, क्योंकि इसको मैं नहीं लिख सकता. लेकिन अगर लैम्डा कॉम्प्लेक्स है तो आई हैव 3 रूट्स, 0 प्लस माइनस आई, है कि नहीं है. तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो क्यूबिक के आपके रूट्स जितनी पावर है उतने रूट निकल आएंगे. लेकिन अगर लैम्डा रियल होता तो फिर यहाँ पे सिर्फ एक ही रूट होता, इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते थे.
तो इसलिए लैम्डा मैंने लिखा, लैम्डा कैन बी एनीथिंग। तो ये जो लैम्डा निकल के आएंगे सॉल्व करके, दीज लैम्डाज, जो 3rd डिग्री की है तो 3 आएंगे, 4 डिग्री की है तो 4 आएंगे। सो दीज लैम्डाज आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज, है ना, समझ में आ गई? यस सर। सो these lambdas called the eigen values। इसके भी डेफिनेशन में पूरी और लिखूंगा आगे। ऑफ द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कराती हैं ये। एंड अब ईच लैम्डा के लिए यू विल सॉल्व द सिस्टम। अब क्या होगा, हर लैम्डा के लिए मैं यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट करूंगा इस जगह पे और इसे सॉल्व करूंगा। जैसे 3 लैम्डा आ गया आपके पास, 0 1 1 या 0 1 2, पहले 0 रख के सॉल्व करेंगे तो इससे x1 x2 x3 निकल कर आएगा, फिर 1 लिख के सॉल्व करेंगे, फिर 2 लिख के, है ना। सो द वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3 करस्पॉन्डिंग टू लैम्डास, उन्हें क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड आइगन वेक्टर्स। ओके, सो for each lambda we get non trivial values of x। ये जो आपका x है ना, तो ये जो नॉन ट्रिवियल वैल्यूज आएंगी इसको हम ई लैम्डा से डिनोट कर देते हैं कभी कभी, है ना। लेट इट इज डिनोटेड बाय ई लैम्डा। तो अगर 3 वैल्यूज हैं तो यू विल बी गेटिंग ई लैम्डा 1, ई लैम्डा 2, ई लैम्डा 3, क्योंकि कुछ वैल्यूज निकल के आएंगी। सो दिस कॉल्ड, तो ये जो x1 x2 x3 है, इट इज कॉल्ड आइगन वेक्टर्स, क्योंकि ये वेक्टर्स आ रहे हैं। सो द वेक्टर्स corresponding to lambdas called the eigenvectors। सर आइगन वेक्टर ऑफ ए, नहीं, करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। आइगन वेक्टर आएंगे करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। ओके सर। हाँ, करस्पॉन्ड, ये लिख तो दिया मैं। द वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू लैम्डास कॉल्ड द आइगन वेक्टर्स, है ना। आइगन वैल्यूज जो हैं वो एक ही होंगी, आइगन वेक्टर हैं तो एक ही, लेकिन करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा है, क्योंकि हर लैम्डा के लिए आपके अलग सेट आएगा। ओके, सो अगर मैं इसे ऐसे डेफिनेशन लिखना चाहूँ, यही डेफिनेशन है, लेकिन आपकी जो डेफिनेशन इन प्रिसाइज, आई कैन राइट अ डेफिनेशन 6.8.1 पेज नंबर 234। if A is a square matrix, if A is a square matrix, इसका मतलब आइगन वैल्यूज हमेशा हम स्क्वायर मैट्रिक्स की निकाल सकते हैं, क्योंकि आइगन वैल्यूज क्या हैं, दे आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल व्हिच यू आर गेटिंग बाय टेकिंग डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का सर होगा, है ना। सो इफ A यस is a सर। square matrix of order n, सपोज n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, then the values of lambda for which the equation ax is equal to lambda x, to lambda x has non-trivial solutions। Non-trivial word is important,
are called the eigenvalue of A. Okay, non-trivial means x is not not 0, equal है ना? to 0. That means x not 0. So if you have ax is equal to lambda x, so I will find that for what value of lambda it will have a non-trivial solution. So if lambda is an eigenvalue, if lambda is an eigenvalue of A, then eigenvalue of A then the non-zero vector x corresponding to lambda is called the eigenvector. Is called the eigenvector. ठीक, समझ में आ गई बात? ये जिससे हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये मैंने ये बताया ax minus lambda x को you will solve. So you how to solve it? So that can be written as, this can be written as ax minus lambda x 0. So you will be solving. So this has non-trivial solution if and only if determinant of a minus lambda I is equal to 0. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, देखो ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. अभी मैंने क्या बताया, इसे अगर मैं नंबर 2 डाल दूं, सपोज इट इज योर 1, इट इज 2, it will represent a polynomial of degree n, है ना? And ये इक्वेशन हो गया ना, जब सॉल्व करोगे इसे आप, जब आप सॉल्व करेंगे तो yes, इट इज अ sir. पॉलिनोमियल. देन दिस, सो दिस 2 इज अ 2 इज एन इक्वेशन, क्योंकि इधर 0 लिखा हुआ है तो इक्वेशन हो गई. दिस 2 इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री n डिग्री की होगी, है ना? दिस इज कॉल्ड द characteristic equation, which is called the characteristic equation. Characteristic equation of the matrix A, of the matrix A. तो अगर आपको किसी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है तो क्या करेंगे आप, डिटरमिनेंट निकालेंगे a माइनस लैम्डा आई. तो जो लैम्डा के टर्म में जो इक्वेशन बनेगी, क्योंकि लैम्डा नोन है, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कराएगी, है ना? और डिटरमिनेंट जो है खाली वो पॉलिनोमियल. इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल में क्या फर्क है, if you are putting something is equal to 0 it becomes equation. अगर you are writing सिर्फ, you are writing only a determinant and it is a polynomial, है ना? यही फर्क होता है polynomial equation. So it is a characteristic equation of degree n. इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या होगा, सर लैम्डास की वैल्यू हाँ, निकलेंगी. और कितनी हो सकती है वो मैक्सिमम, सर n हो हाँ, सकती हैं. at most n. We solve equation 2, है ना, which can have at most n distinct roots, है ना? डिस्टिंक्ट रूट कितने हो सकते हैं, n, एट मोस्ट n डिस्टिंक्ट रूट्स.
हो सकता है भाई रिपीटेड हो जाए, अगर जैसे मान लो पॉलिनॉमियल आ गई आपके पास, तो डिस्टिंक्ट रूट्स कितने हैं सिर्फ 0 and 1, दो ही हैं, 0 1 1। है ना। लेकिन अगर आप कैसे मैंने अभी बताई थी कि लैम्डा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, ये 0 आ गई, तो उस केस में आपके पास कितने रूट हो गए, 3 हो गए। जब कब है ये, जब n 3 है, तो इट विल बी हैव एट मोस्ट n डिस्टिंक्ट रूट्स। तो हर रूट के लिए हम सॉल्व करेंगे एंड वी विल फाइंड इट, ठीक है। और ई लैम्डा जो आएगा, ई लैम्डा इज द ई लैम्डा इज व्हाट, सर ई इज द लैम्डा क्या सेट, है? ई लैम्डा सेट ऑफ, ई लैम्डा इज द, अभी लिखा हुआ था, ई लैम्डा रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ ऑल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 या 2, इसका जो सेट बनेगा, भाई लैम्डा की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे, है ना, फॉर अ गिवन लैम्डा, तो सेट ऑफ ऑल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, तो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा वेयर, हेयर, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि सिस्टम है ना ये एक्स, तो कुछ इक्वेशन बन गया x1 x2 x3, कुछ वैल्यूज निकल के आएंगी नॉन ट्रिवियल, उसको हम ई लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितने ई लैम्डा होंगे, जितने आपके पास डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे उतने ही ई लैम्डा बनेंगे, ओके। यस सर। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड पे पढ़ना। यस, सर इससे पहले वाली पे। सर इससे भी पहले। यस सर। हो गया सर। ठीक, चलिए। तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम, टाइम नहीं है ज़्यादा, फ्राइडे में हमारी क्लास है, तो आई विल डू some couple of problems and 1 2 results are there, ठीक है। इसको आप समझिएगा, इतने आइगन वैल्यूज क्या है, व्हाट आर द यूज ऑफ आइगन वैल्यूज। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़।